بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے انسان، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں۔ جو ایسا کرے گا میں اسے بہترین جزا سے نوازوں گا، اور جو میری عبادت اور اطاعت سے سرتابی کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی، ہلاکت ہے ان کی آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ کیا ایسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا وآیاتہ لیتذکر اولو الالباب۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ یہ بابرکت کتاب ہے، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی، جس کو ہم نے نازل کیا، جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو اپنی عقل کو اور شعور کو استعمال کرتے ہیں۔ جو اپنی عقل کو اور شعور کو استعمال نہیں کرتا وہ اس سے کبھی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اپنی انا میں پڑا ہے وہ کبھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا کیا۔ نعم العبد، جو بڑا اچھا بندہ تھا، انہو اواب، پھر میرے رب نے فرمایا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ اب دیکھیں یہ بھی ان کی بھی وہی خاصیت، یعنی اولاد کے اندر باپ کی کوئی نہ کوئی خاصیت آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنی عبادت گزار، اللہ تعالیٰ سے اتنے مانگنے والے، بار بار رجوع کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر بھی وہ عادت اپنی والد سے ٹرانسفر ہوئی۔ اگر اتنے زیادہ بیویاں تھیں تو یقیناً ان کی اولاد بھی زیادہ ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات نات الجیاد، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے، تیز جو بہت تیز اور بہت اچھی نسل کے جو گھوڑے ہوتے، تیز روح گھوڑے پیش کیے گئے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے صافناتن، صافنون یا صافناتن کی جمع ہے، یہ لفظ صافناتن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مونس کی جمع ہے۔ صافنون یا صافناتن کی جمع ہے وہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوں۔ جیادن، جوادن کی جمع ہے جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی جو بہت ہی تیز گھوڑا ہو، جو بہت تیزی سے بھاگتا ہو۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے وہ عمدہ، اصیل اور تیز رو گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ عشیون، ظہر یا عصر سے لے کر آخر دن تک کے وقت کو کہتے ہیں، جسے ہم شام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ شام کے وقت ان کے سامنے وہ تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے جہاد کے لیے۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے تھے، یا وہ ان کو دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کا معائنہ کرنا چاہ رہے تھے، یا جو بھی تھا باہر ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقالا، تو کہنے لگے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی۔ اللہ اکبر، حتی تورات بالحجاب، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ کتنا خوف آ گیا ان کو، کتنی پریشانی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قدر پریشانی ہو گئی کہ میں ان گھوڑوں کو دیکھتا رہ گیا، اور ان کو دیکھتے ہوئے میں اپنے رب کے ذکر سے ذکر کو بھول گیا۔ لمحہ، صرف لمحہ لگا ان کو، لمحہ انہوں نے اپنے رب سے دوری اختیار کی، فوراً ہی ان کے دل میں کھٹک آ گئی۔ ہم دنیا کے کتنے کام کر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بادشاہت نہیں عطا کی،
ऐसे ही अपने इनामात नहीं नवाजे, अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें ऐसे ही नहीं अता कर दी। रुद्दूहा अलैया, उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फतफिका मसहम बिस्सूक वल आनाक, फिर तो पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। इस तर्जुमे के हिसाब से जो लफ्ज है असर तू तरजीह देना, और अन यानी कि आला के मानी में आया है। और तौरात जो है बेसिकली यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो जो पिछली आयत है उसके बारे में बयान किया गया है। लेकिन दर हकीकत जो यहाँ पर जो तफसीर है हम उसकी वो देखते हैं वो क्या है कि मसअम बिल बिस्सूक वल आनाब का तर्जुमा भी ज़िबह करना होगा। यानी मसअम बिस्सैफी का मफहूम मतलब होगा कि घोड़ों के मुआयना में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असर की नमाज या वजीफा खास रह गया जो उस वक्त वो करते थे, जिस पर उन्हें सख्त सदमा हुआ और कहने लगे कि मैं घोड़ों की मोहब्बत में इतना इतना ज्यादा गुम हो गया कि सूरज मगरिब में छुप गया और अल्लाह ताला की याद, नमाज और वजीफे से मैं गाफिल रहा। चनाचे उन्होंने क्या किया, उसकी तलाफी और रजाले के लिए उन्होंने सारे घोड़े अल्लाह ताला की राह में कत्ल कर डाले। ये थी अल्लाह से मोहब्बत, यानी इतने असील और इतने खूबसूरत तरीन घोड़े जिसने अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की याद से उनको लम्हे के लिए गाफिल किया, उन्होंने उन सारों को ही जिबा कर दिया। अच्छा, कुछ मुफसरीन इसकी इसकी तफसीर ये बयान करते हैं कि यानी रब की याद की वजह से मैं इन घोड़ों से मोहब्बत रखता हूँ, यानी इसके जरिए से अल्लाह की राह में जिहाद को जिहाद होता है। फिर इन घोड़ों को दौड़ाया हत्ता के वो नजरों से ओझल हो गए, इन्हें दोबारा तलब किया और प्यार और मोहब्बत से उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। और कुरान में माल के खैर उनका जो लफ्ज है, खैर उनका लफ्ज कुरान में माल के मानी में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ ये लफ्ज घोड़ों के लिए आया है। और तौरात का जो तौरात है वो भी घोड़े की तरफ लौटाया गया है जो लफ्ज है। इमाम इब्न जरीर ने इस दूसरी तफसीर को तरजीह दी है और उन्होंने कहा है कि इसकी तफसीर दर हकीकत यही है कि उन्होंने फिर वापस से बुलाया कि इन घोड़ों से मोहब्बत मुझे अल्लाह ताला के दीन की वजह से है, अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के दीन को फैलाने की वजह से कि मैं इन पर बैठकर जिहाद के लिए जाता हूँ। फिर मेरे रब ने आगे मजीद इरशाद फरमाया, फ़क़ाला वलक़द वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उसने रजू किया। अब ये बड़ी अहम बात है, वो क्या है, ये आजमाइश क्या थी, कुर्सी पर डाला क्या गया, जिस्म किस चीज का था, और इसका मतलब क्या है। इसकी भी कोई तफसील कुरान मजीद में या हदीस में नहीं मिलती। अब याद रखिएगा कि ये मुफसरीन अपने, अगर 100 मुफसरीन होंगे वो अपने अंदाजे के हिसाब से उसको बयान करेंगे। अलबत्ता बाज मुफसरीन ने सही हदीस से साबित एक वाक़े को इसके साथ उन्होंने मुंसलिक किया है। वो ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहा कि मैं आज की रात अपनी तमाम बीवियों से, जिनकी तादाद 70 या 90 थी, हम बिस्तरी करूंगा ताकि उनसे शाहसवार पैदा हों जो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करें। और इस पर इंशाअल्लाह उन्होंने नहीं कहा, यानी सिर्फ अपनी ही तदबीर पर सारा एतमाद किया। नतीजा ये हुआ कि सिवाय एक बीवी के कोई भी बीवी हामला नहीं हुई, और हामला बीवी ने भी जो बच्चा जना वो नाकिस यानी आधा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कह लेते तो सब के सब बीवियों में से अल्लाह ताला उनको मुजाहिद अता करता, सब बीवियों में से उनको उनके मुजाहिद पैदा होते। इन मुफसरीन के ख्याल में शायद इंशाअल्लाह ना कहना या सिर्फ अपनी तदबीर पर एतमाद करना यही फितना है जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुब्तला हुए, और कुर्सी पर डाले जाने वाला जिस्म वो नाकिसुल खलकत बच्चा था। तो ये कितनी अहम तरीन बातें हैं कि हमें समझने के लिए, वो बादशाहत, वो नबूवत, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया कि अल्लाह ताला ने नबियों को बादशाहत और नबूवत देकर उनको नहीं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनको नहीं आजमाया, अल्लाह ताला ने माल देकर भी आजमाया। फौरन ही वो अल्लाह की तरफ पलटे। कौला
रब्बि इग़फ़िर ली वहब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहद मिन बअदी। कहा कि ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता कर फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। यानी शाह सवारों की फौज पैदा होने की आरजू तेरी हिकमत और मशीयत के तहत पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर मुझे ऐसी बाइख्तियार बादशाहत अता कर दे कि वैसी बादशाहत मेरे सिवा या मेरे बाद किसी के पास ना हो, तो फिर औलाद की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये दुआ भी अल्लाह के दीन के गलबे के लिए थी, बादशाहत के लिए नहीं थी, कि उन्हें अल्लाह ताला की दुनिया की आसाइशों की वजह से नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला के दीन का गलबा चाहते थे वो, जिसके लिए अल्लाह ताला से उन्होंने इस बादशाहत के लिए दुआ की। सुबहान अल्लाह। आज हम अपना माल, अपना घर, अपना सब कुछ बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? अपनी औलाद के लिए। अल्लाह ताला के दीन के लिए हम कुछ नहीं छोड़ते। हम अगर अल्लाह ताला के दीन के लिए, अल्लाह ताला के दीन की सलामती के लिए, उसको फैलाने के लिए कुछ मुशक्कत, कुछ कोशिश करें, अपनी नियत कर ले, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको हमारे लिए नफा बख्श कर देगा। फिर मेरे रब ने फरमाया फसख्खरना फसख्खरना लहू रीहा तजरी बिअम्रिही रुखाअन हैथु असाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी। यानी हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली और ऐसी बादशाही अता की जिसमें हवा भी उनके मातहत थी। यहाँ हवा को नरमी से चलने वाला बताया है, जबकि दूसरे मकाम पर उसे तेज तुंद कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि हवा पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने जो हवा बनाई है वो हकीकतन कुव्वत के लिहाज से तुंद और तेज है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हवा को नरम कर दिया। या हस्बे जरूरत, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब जरूरत होती तो वो तेज चलती, और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जरूरत, उसको उसकी रफ्तार को कम करना चाहते, तो सुबहान अल्लाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी रफ्तार को कम भी कर लेते। सुबहान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत मेरे रब की मोजज़ात हैं जो उसने अपने नबियों को अता किए। कुर्बान जाए अपने रब पर। वश्शयातीन कुल्ला बनाइन व गवास। अब मेरे रब ने फरमाया, और ताकतवर जिन्नात को भी उनके मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को। तमाम शयातीन को अल्लाह ताला ने उनके उनके मातहत कर दिया। व आखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फाद। और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते। जिन्नात में जो सरकश या काफिर थे, उन्हें बेड़ियों में जकड़ दिया जाता ताकि वो अपने कुफ्र या सरकशी की वजह से सरताबी ना कर जाएं। हादा हादा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये है हमारा अतिया, अब तो एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। यानी तेरी दुआ के मुताबिक हमने तुझे अजीम बादशाही से नवाज दिया है। अब इंसानों में से जिसको तू चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, तुझसे हम हिसाब नहीं लेंगे। औ इमसिक बिगैर हिसाब। अब हम तुझसे हिसाब नहीं लेते इस बारे में। अल्लाह ताला ने उनकी इतनी इबादतों के बाद उनकी इस दुआ को कबूल कर लिया। व इन्ना लहू इंदना लजुल्फा व हुस्न माब। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत ही अच्छा ठिकाना है। यानी दुनिया की जाहो जलाल और मर्तबा अता करने के बावजूद आखिरत में भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना तकर्रुब देंगे, और वो जाहो जलाल और रब्बे कायनात उनको इंशाअल्लाह आखिरत में भी एक ऊंचा मकाम देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।